Okay, ji, let's move on with IKE version 2. IKE version 2 preserves most of the features of IKE v1, but the idea behind IKE version 2 was to make it as easy as possible. और इसमें कुछ enhancements की जाए, though it works on the same UDP port. Enhancements इसमें क्या की गई हैं? So IKE version 2 supports EAP, which was not supported in IKE version 1. IKE version 2 is less bandwidth hungry due to lesser messages. IKE version 2 supports asymmetric authentication, means one side can use RSA, yani कि certificate, and other side can use pre-shared key to authenticate. So asymmetric authentication हो सकती है. And it provides enhanced security by supporting more encryption and authentication algorithms. As an example, अगर आपने SHA-256 यूज करना है, आपने SHA-512 यूज करना है, तो आपको IKE वर्जन 2 में जाना ही पड़ेगा. और आपको पता है कि SHA का जो वर्जन 1 है, SHA-1, this is now considered as weak. और जो IKE वर्जन 1 है वो सिर्फ इसी को सपोर्ट करता है, उसके अंदर इसकी सपोर्ट नहीं है. इसकी सपोर्ट आपको IKE v2 में मिलेगी. इसका मतलब ये है कि IKE वर्जन 1 जो है ये बजाते खुद ऑब्सोलीट है या ऑब्सोलीट होने जा रहे हैं. एंड वी शुड ऑलवेज रिलाई ऑन IKE वर्जन 2 टू मेक आवर VPNs so that we can use latest algorithms. IKE version 2 has built-in NAT reversal, whereas IKE version 1 में it was an option और इसको डिटेक्ट करना पड़ता था, इसकी डिटेक्शन होती थी. सिस्को में एक VPN कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है called Flex VPN. वो जो फ्रेमवर्क सिस्को ने बनाया है वो सपोर्ट ही सिर्फ IKE वर्जन 2 करता है, उसमें IKE वर्जन 1 चल ही नहीं सकता. तो ग्रेजुअली सिस्को हमें फ्लेक्स VPN की तरफ लेकर जा रहा है, जो कि हमने स्टडी करना है. और Flex VPN is totally dependent upon IKE version 2. तो हमने ये पढ़ा था कि IKE version 1 का फेज 1 जो है वो दो मोड्स हैं, या तो मेन मोड या एग्रेसिव मोड. मेन मोड में 6 मैसेजेस एक्सचेंज होते थे, एग्रेसिव मोड में 3 होते थे, और फेज 2 जो था वो क्विक मोड था और उसमें 3 एक्सचेंजेस थे. ये IKE वर्जन 1 था, जो कि खुद एक कॉम्बिनेशनल प्रोटोकॉल था. IKE version 2 कंबाइन कर देता है these modes into 4 messages only. 4 मैसेजेस में सब कुछ हो जाता है. 4 मैसेजेस में फेज 1 से लेकर फेज 2 तक जो कुछ पीछे हुआ था वो सब कुछ हो जाता है और सिक्योरली होता है. So the IKE essay is negotiated and authenticated, and then the child essay is negotiated. IKE essay is equivalent to ISACamp essay. अब ये टर्म्स का फर्क है थोड़ा. ISACamp essay IKE वर्जन 1 में लफ्ज बोला जाता था, यहाँ पे उसको IKE essay कहा जाता है. और IPsec essay का जो टर्म IKE वर्जन 1 में बोली जाती है वो यहाँ पर चाइल्ड essay गिनी जाती है. So child essay is basically IPsec essay. So child essay is negotiated and keys are generated in 4 messages. Subsequent rekeying of child essay is accomplished in only 2 messages. So it is way faster than IKE version 1. So होता क्या है कि इनिशिएटर IKE सिक्योरिटी एसोसिएशन पैरामीटर्स सेंड करता है, मैचिंग पैरामीटर्स सर्च किए जाते हैं. अब यहाँ पर ये IKE v2 की अपनी essay की बात हो रही है, इसकी अपनी एन्क्रिप्शन, इसकी अपनी हैशिंग और इसकी अपनी ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है. पैरामीटर्स एक्सेप्ट होंगे, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जाएगी, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में ऑथेंटिकेशन होगी. अब ये यहाँ पर आप प्री शेयर्ड की पे कर लें, आप सर्टिफिकेट पे कर लें, आप EAP यूज कर लें, और EAP के बेतहाशा वेरिएंट्स हैं.
और इस बेस पर आइडेंटिटी कंफर्म होगी, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगी एंड राइट आफ्टर दिस चाइल्ड ऐसे एस्टेब्लिश हो जाएगी, यानी IPsec रेडी हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग सिक्योर ट्रैफिक। सो इसमें आइक ऐसे इनेट फेज है, आइक ऑथ फेज है और उसके बाद क्रिएट चाइल्ड ऐसे फेज है। So very quickly in 4 messages you reach up till establishment of IKE version 2 SA as well as IPsec SA called child SA. So like IKE V1, IKE V2 also has 2 phases negotiation process. First phase is known as IKE SA init, which is this. यहाँ से यहाँ तक IKE की SA का initialization, फिर IKE auth, this is called phase 1, this is called phase 2, and right after that you end up having a fully established IPsec SA called child SA. So first phase is known as IKE SA init and the second phase is called IKE auth. At the end of second exchange, yani phase 2, the first child SA is created. Child SA is IKE V2 term for IPsec SA. So to conclude IKE version 2, IKE SA plus IPsec SA is established in 4 messages. It supports public signature keys, certificates वगैरह, hide both side identities from passive attackers, ये secure है. One child SA established at the end of all IKE init and IKE auth phase 1 and phase 2 messages. फ्यूचर चाइल्ड एसेज यानी जब आपका टाइम एक्सपायर हो जाएगा, लाइफ टाइम, आप री की करना चाहेंगे, तो जब री कीइंग होगी तो वो सिर्फ 2 मैसेजेस में हो जाएगी, ओनली इन 2 मैसेजेस एंड ईदर साइड कैन री की एट एनी टाइम। यानी IKE वर्जन 1 में आपका जो री की का लाइफ टाइम है दैट हैड टू मैच, इसके अंदर कोई भी साइड किसी भी वक्त री की इनिशिएट कर सकती है और की को अपडेट कर सकती है। So rekeying of either child SA or IKE SA is done by creating new SA and then deleting the old one. So ये नहीं है कि वो previous security parameter index ही पड़ा रहेगा और उसी के अंदर चीजें अपडेट होती रहेंगी। All together एक नया SPI जनरेट होगा, एक नई database entry होगी और पिछली एंट्री को फिर डिलीट कर दिया जाएगा। So it will be all together a new SA entry in the SADB. और rekeyed जो IKE SA है that inherits all the information from child SA, यानी जो नई सिक्योरिटी एसोसिएशन बनेगी वो आपकी प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड चाइल्ड SA के पैरामीटर्स यानी इंक्रिप्शन क्या थी, हैशिंग क्या थी, उसके एल्गोस को इनहेरिट कर लेगी, बस कीज नई जनरेट हो। एक और बड़ा जबरदस्त फीचर IKE वर्जन 2 में ये है कि इसमें ट्रैफिक सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल है, जो कि IKE वर्जन 1 में पॉसिबल नहीं थी। IKE वर्जन 1 में ये होता था कि आपको बताना पड़ता था कि सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP कौन से हैं जिनको हमने इनक्रिप्ट कर देना है। तो आप बताते थे 192.168.1.0 से जो ट्रैफिक 192.168.2.0 को जाए R1 पर और R2 पर आप उसका रिवर्स बताते थे कि सोर्स IP 192.168.2.0 से जो ट्रैफिक आए और वो 192.168.1.0 की तरफ जाए तो इनक्रिप्ट कर दो। इन दोनों को हम वहां पर प्रॉक्सी कहते थे, प्रॉक्सी ID। इन अदर वर्ड्स ट्रैफिक क्राइटेरिया टू बी टनल्ड और एनक्रिप्टेड। तो ये IKE वर्जन 1 के अंदर ये एग्जैक्टली एक दूसरे का रेप्लिका होना चाहिए था। अगर इसमें जरा सी भी रद्द-बदल कर दें आप तो ये नहीं चलता था। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख दें 192.168.1.1 और 2.1 या यहाँ IP दे दिए, यहाँ सबनेट्स दे दिए, ये नहीं वर्क करता था। IKE वर्जन 2 में क्या है कि आप लिस्ट दे दें IP एड्रेस की रेंजेस, पोर्ट की रेंजेस और दोनों पार्टीज उनमें से मिनिमम के ऊपर एग्री कर जाएंगे।
यानी फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि मैं एनक्रिप्ट करूंगा 1.1 से 2.1 की तरफ ट्रैफिक। इसके पास ओपन चॉइस है पूरे सबनेट की, बट R2 और R1 आपस में एग्री कर जाएंगे मिनिमम क्राइटेरिया के ऊपर। ये R2 मान जाएगा कि ठीक है 192.168.1.1 और 2.1 के दरमियान ही ट्रैफिक को मैं सिक्योर करूंगा, बाकी को नहीं करूंगा। So this is called traffic selector. So child SA uses traffic selector payload, allows list of IP addresses. Responder can narrow choice, not just reject. Reject जो कि IC version 1 के अंदर रिजेक्शन हो जाती थी।